Hello dear students, today we will discuss about isomerism in organic compounds. Isomerism is a phenomena in which two or more than two compounds exhibit same molecular formula. They have same molecular formula but different arrangement of atoms, or we can say they have different structures. For example, if I'll take example of any compound with molecular formula C2H6O. So we are having the molecular formula C2H6O. We can draw it in two ways. We can show it in two ways, like this is CH3 CH2 OH and dimethyl ether also. The example quoted here is ethanol and dimethyl ether, and it in both cases molecular formula is C2H6O, right? So this is ethanol where the molecular formula is C2H6O, and this is dimethyl ether where the molecular formula is again C2H6O. So they have same molecular formula, but if you will see here, OH is the functional group and here ether, oxygen between two alkyl groups act as a functional group. So this is alcohol and this is ether. These are members of two different homologous series. So what I mean is that in isomerism, there are compounds that are having same molecular formula, but because of arrangement of atoms, because of different arrangement of atoms or because of different structures, they can have different physical and chemical properties. So basically what molecular formula doesn't define physical and chemical properties. If this is ethanol, it is having alcoholic group, or we can say hydroxyl group, and in ethers we are having oxygen. They definitely have different physical and chemical properties. So but they exhibit isomerism, they show isomerism because they have same molecular formula but their structure, or we can say their arrangement of atoms, is different. Now coming to the types of isomerism, discussing about the types of isomerism, we have two main types of isomerism: structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism, again here we can say in both cases molecular formula is same, because isomerism in itself means having same, or compounds having same phenomena in which compounds have same molecular formula. तो यहाँ पर क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दे आर बेसिकली कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो एटम लिंकिंग होती है, जो आपस में बॉन्ड्स की हाउ दे आर लिंक्ड टू ईच अदर, वो डिफरेंट होता है, या फिर हम कहते हैं सिंपली यहाँ पर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं. स्टीरियोआइसोमेरिज्म में भी सेम बात है, वहाँ पर भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर स्पेस का जो अरेंजमेंट है, बिकॉज स्टीरियो मीन स्पेस, सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम क्या स्पेस की बात करते हैं, स्पेस में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोथ हैव फर्दर टाइप्स. जैसे आप अगर लेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स आते हैं, चेन आइसोमेरिज्म इज़ वन ऑफ द टाइप, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. ये सारे आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स है वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखेंगे वी हैव चेन आइसोमेरिज्म. व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना है जहाँ पर कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट है. मतलब कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है. अगर मुझे एग्जाम्पल से समझाना होगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल सी यू हैव दिस CH3 CH2 CH2 CH3, राइट. ये आपके पास एक कार्बन चेन है. अब इस एक और कार्बन चेन में बताती हूँ आपको, CH3 CH CH3, और यहाँ से हम
एक ब्रांच बनाते हैं CH3। अगर आप दोनों केसेस में देखेंगे, दोनों केसेस में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो सेम है। यहाँ पर भी 4 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4, वी हैव 4 कार्बन्स। नाउ हाइड्रोजन अगर गिने तो 3 + 2 means 5, 5 + 2 means 7, 7 + 3 means 8. It is C4H8, right? Sorry, it is C4. It is 3. It is 3 + 2 5, 5 + 2 is 7, 7 + 3 is 10. It is C4H10. So again here यहाँ पर 1 2 3 और 4 कार्बन एटम्स है। 3 + 1 is 3 + 1 is 4, 4 + 3 is 7, here 7 + 3 is 10. सो इन बोथ केसेस अगर आप देखेंगे, दोनों केसेस में क्या है, दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10। लेकिन अगर आपको यहाँ देखना होगा, चेन सेलेक्ट करनी होगी, इफ़ यू हैव टू सेलेक्ट चेन, हम कैसे चेन सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर चारों के चारों कार्बन एटम जो है चेन में लेंगे। सो इसका नाम अगर हम बताएंगे, इट इज़ 1 2 3 4, सो इसका नाम आएगा ब्यूटेन। फाइन। अब अगर यहाँ पर आप लेते हैं फॉर एग्जांपल 1, अगर आपको चेन सेलेक्ट करनी होगी, चेन आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप 3 कार्बन लेंगे। 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। इसको क्लियर करती हूँ थोड़ा सा बेटर व्यू देने के लिए। इट इज़ CH3, जो दूसरी एग्जांपल हमारी थी, CH एंड CH3, देन यू हैव दिस CH3। अब अगर आपको यहाँ चेन सेलेक्ट करनी है, यू विल सेलेक्ट दिस चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन। तो 1 2 3, अगर आपको नाम इसका बताना होगा, इट इज़ 2-मिथाइल प्रोपेन। लेकिन कार्बन चेन अगर आप देखेंगे, अगर आप पहला वाला याद रखेंगे, पहले में क्या था, पहले में 4 कार्बन्स की चेन थी, ब्यूटेन उसका नाम था। दूसरे में 3 ही कार्बन एटम्स की चेन है, तो यहाँ पर प्रोपेन ही बनता है ये। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कार्बन जो नंबर चेन में कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो डिफरेंट है यहाँ पर। सो इसीलिए यहाँ पर इसको हम चेन आइसोमर्स कहते हैं, दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं, वाइल एज यहाँ पर जो आपने 2-मिथाइल प्रोपेन लिया, या फिर आप इसको आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं, आइसोब्यूटेन में 3 ही कार्बन एटम्स की चेन है, और एक जो मिथाइल ग्रुप है वो एज ब्रांच है या फिर एज सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। उसके बाद चेन आइसोमरिज्म के बाद हमारे पास जो टाइप आता है, दैट इज़ पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में इधर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप चेन में प्रेजेंट होगा तो वो सेम होगा। दो अगर कंपाउंड्स है फॉर एग्जांपल, आपको दोनों कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन उनकी जो पोजीशनिंग है वो डिफरेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी। यहाँ पर मैं लेती हूँ CH3 CH2 CH2 OH, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा CH3 CH3, और यहाँ पर इस CH के साथ मैं OH लगा देती हूँ। फाइन। नाउ सी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन चेन की पहले बात करते हैं। यहाँ पर भी 3 कार्बन्स की चेन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन्स की चेन है। अब फ़र्क कहाँ पर है? फ़र्क कहाँ पर है? सी, इन फर्स्ट केस अगर आपको नंबरिंग करनी होगी, अगर आपको उसको नाम देना होगा, यू विल स्टार्ट, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलती है, उसी से हमें नंबरिंग स्टार्ट कर, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप का लीस्ट नंबर आ जाए वहाँ से ही हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। सो वी विल स्टार्ट विद फ्रॉम दिस साइड 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अगर आपको इसका नाम देना होगा, इसका नाम आएगा प्रोपेनॉल, बिकॉज
प्रोपेन बिकॉज इसलिए क्योंकि कार्बन का 3 कार्बन एटम्स की चेन है, और ऑल क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ अगर आपको दूसरी एग्जांपल में नाम देना होगा, ये हो गई हमारी चेन, और नंबरिंग आप दोनों साइड से, इधर साइड से कर सकते हैं, इधर यहाँ से तब भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे है वो सेकेंड नंबर पे आता है, या अगर आप ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तब भी फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पे आता है। अगर आप इस तरीके से नंबर करेंगे 1 2 3 तब भी फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पे ही आता है। नाम लेकिन इसका क्या आएगा, इसका नाम आएगा प्रोपेन टू ऑल, इसका आएगा प्रोपेन टू ऑल। वाई प्रोपेन टू ऑल, बिकॉज दूसरे कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन चेन जो है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो सेम है, दोनों में प्रोपेन ही है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में, फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में नंबर 1 कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दूसरे केस में दूसरे वाले कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। इट्स नॉट अबाउट फंक्शनल ग्रुप ओनली, आपका सबस्टिट्यूएंट भी हो सकता है, सबस्टिट्यूएंट की भी डिफरेंट पोजीशन हो सकती है। अब कहीं पर सेकेंड पोजीशन पे हो, कहीं पर थर्ड पोजीशन पे हो सकता है, कहीं पर फोर्थ पोजीशन पे हो सकता है। सो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है, वहाँ पर चेन जो होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेन में सेम होते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ होती है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है या सबस्टिट्यूएंट भी सेम होता है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है या फिर जो सबस्टिट्यूएंट का पोजीशन है वो डिफरेंट होता है। सो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं यही दो आइसोमेरिज्म के टाइप्स एक्सप्लेन करूँगी। इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं और इसके टाइप्स एक्सप्लेन करूँगी।